This is Rahim Zulfikar Ali. I'm the founder and chief spreadsheet officer of Excel Basement. I'm taking interview from the Saad Zubair Vora about how he started his journey regarding Microsoft Excel and what are the key points for the students and professionals and why you should join the training sessions with the Saad regarding financial modeling. This series is called the Excel Table Talks, and on the weekly basis we invite one Excel expert or a professional and we go from the Excel Basement platform to conduct their interview. I have asked Saad certain questions, and during this whole interview you will be watching the Saad inputs regarding the financial modeling and advanced Excel learning. This video is in bilingual Urdu and English, so the viewers who can understand Urdu language can easily understand this video. To do the value addition in this video, I would give one advice as a Microsoft Excel coach that it's very important when you do some certifications, when you go for certifications like Advanced Excel or Financial Modeling or BI, it's very important you just not get the certificate, you can also have a success story or a learning story with you. You should do one project regarding that skill set, because these days some of the people contact me to review their resumes, and in that resumes or in the latest resume the success stories or learning stories are missing. What we do, we enroll for the course, we do one certification, and after that certification our retention point gets lower because we are not able to practice that. Number one key point is do practice as much as you can, and number two, if you are doing certification regarding financial modeling, have some project in the industry regarding financial modeling. This will able to connect you with the classroom practices and the practical practices and give you an extra edge at your workplace. My name is Saad Zubair Vora. I am ACT finalist. I am a co-founder of Christian Solution, and I am providing advanced Excel and financial modeling trainings to corporate clients and students and professionals. Since 2012 I am using Excel and I have a certification from IBA and other institutes about financial modeling and advanced Excel, and I am a tax and business consultant. अच्छा, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस मॉडल के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसमें हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर हम एक कॉपी शॉप है जो कि हम इसको जो है वो इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। हमें क्या करना है कि हमें एक मॉडल बनाना है टू एस्टिमेट प्रॉफिट पर गिवन नंबर ऑफ कॉपीज इन डिमांड, मतलब दो वैल्यूज़ पे बनाना है हमने। लाइक हमारी पर डे डिमांड अगर 500 हो तो हमारा प्रॉफिट कितना आता है, और पर डे 1000 है या 1500 या 2000 है तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हमने ये सिनेरियो उसको एक जगह कर लिया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने की फैक्ट्स बनाए। की फैक्ट्स इस वक्त हमारे पास ये हैं कि जो हमें सिनेरियो से इसको मज़ीद जो है वो फ़िल्टर डाउन किया है चीज़ों को, कि हमारे पास सिनेरियो में क्या था कि कॉपियर की जो लीज थी $5000 पर कॉपी था, फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट थी 0.02 पर कॉपी, एक कॉपी बनाए, और रेंट जो है $300 पर मंथ था और 0.11 पर कॉपी था। और कैपेसिटी कितनी है एक मशीन की कि वो कितने कॉपीज़ को कर सकती है, 1 लाख कॉपीज़ कर सकती है पर ईयर। डिमांड हमारी 500 से 2000 पर डे रहेगी। तो हमने ये क्या किया, पहले सिनेरियो को देखा, की फैक्ट्स बना लिए, ठीक है। उसकी बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि इसकी एक्सपेंस साइड कैसे बनेगी। एक्सपेंस साइड किस तरह बनेगी कि टोटल कॉस्ट होगी हमारे पास। टोटल कॉस्ट जो हमारे पास फिक्स कॉस्ट भी होगी प्लस वेरिएबल भी होगी। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर क्या होगी, हमारे पास कॉपियर लीज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉपीयर्स। फिर इस तरह रेंट जो था वो भी हमारा फिक्स कॉस्ट है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो पर कॉपी की है। फिर हम एक रेवेन्यू साइड डिसाइड करेंगे, वो क्या होगा कि पर कॉपी हमारा रेवेन्यू क्या है और मल्टीप्लाई बाय टोटल कॉपीज कितनी होगी, तो उससे मल्टीप्लाई ये रेवेन्यू आ जाएगा। देन उसके बाद हम एक मॉडल बनाएंगे जिसमें एनालिसिस मॉडल के जरिए हम ये डिफरेंट डिमांड के ऊपर नंबर ऑफ कॉपीज मशीन्स के ऊपर हम देखेंगे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। तो पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सिनेरियो को देखा, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हुए, की फैक्ट्स बनाए हमने। अब हम क्या करेंगे कि की फैक्ट्स बनाने के बाद इनपुट्स बनाएंगे अपने। हमारे जितने भी इनपुट्स होंगे, भले वो कॉस्ट से रिलेटेड हो या रेवेन्यू से रिलेटेड हो, तो सारे हमने कॉस्ट को यहाँ पर ईयर की बेसिस पे यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिए।
जिसमें लीज कॉस्ट है, रेंट है, आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, नंबर ऑफ कॉपीयर्स है हमारे पास, कैपेसिटी कितनी है, उसकी रेवेन्यू क्या है, डिमांड क्या है, ये सब यहाँ रख दिया। ये इनपुट्स आपने की फैक्ट से उठाएं और पर ईयर की बेसिस पे इसको कैलकुलेट करवा दिया। देन इसकी बेसिस पे जब इनपुट्स हमारे डिसाइड हो जाएंगे देन हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। कैलकुलेशन इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हमें प्रॉफिट पता चल जाए। अब हमारे पास जो ये कैलकुलेशन है इसमें फिक्स कॉस्ट भी आ गई हमारी और वेरिएबल कॉस्ट भी आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई, उसमें हमने रेवेन्यू में से माइनस किया तो ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बन गई। अब इसकी बेसिस पे हम डेटा टेबल्स के जरिए डिमांड पर डे 500 हो तो अगर मशीन हमारी 1 रहती है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए आपको ये बता भी रहा है कि टॉप 2 जो वैल्यूज़ हैं वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब जैसे नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ती जा रही हैं और डिमांड 500 पर डे है तो मशीन्स बढ़ने की वजह से फिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। इसकी वजह से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी जो पहले 2 मशीन्स के ऊपर थी वो रिड्यूस होकर लॉस में चली गई हैं। तो हम डिफरेंट एनालिसिस यहाँ पर कर सकते हैं और उसको चेंज करके भी देख सकते हैं यहाँ पर कि हम अगर हमारा रेवेन्यू हम 0.11 नहीं करते हैं, 0.15 करते हैं तो हमारी क्या प्रॉफिटेबिलिटी होगी। ठीक है, पर डे की डिमांड की बेसिस पे और नंबर ऑफ मशीन्स एनुअल डिमांड की बेसिस पे हम देख सकते हैं यहाँ पर। फिर अगर हमारी नंबर ऑफ कॉपीयर्स की जो हमारी कैपेसिटी है वो 2 लाख यूनिट्स हम बना सकते हैं अगर हमारी 2 मशीन हो। तो यहाँ हमने एक मिनिमम का फॉर्मूला लगाया हुआ है कि आपकी एनुअल डिमांड अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो है वो आपकी 2 मशीन्स पूरा नहीं कर सकती, तो आपको नंबर ऑफ मशीन्स बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह हम एक कंप्लीट मॉडल बनाते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी एनालिसिस मॉडल की, जो डेटा टेबल्स के जरिए ये वाला जो है हमने व्हाट इफ मॉडल लगाया हुआ है। अब मैं आपको एक छोटा सा और दूसरा भी दिखा देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या है कि एक छोटा सा हमने लोन का शेड्यूल बनाया हुआ है, ठीक है, जिसमें अपने लोन की अमाउंट है, लाइफ है, उसका इंटरेस्ट रेट है, इंस्टॉलमेंट्स हैं और एक पूरा कंप्लीट शेड्यूल बनाया हुआ है। देन हमने अब देखिए हमारा लोन का शेड्यूल जो बनता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि करंट लायबिलिटी होती है, हमारे पास लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है और इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हमारा इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, करंट लायबिलिटी हमारी बैलेंस शीट में, लॉन्ग टर्म भी बैलेंस शीट में जाएगी, इसके अलावा ये कैश फ्लो में भी जाएगा। तो हमें ये सारी चीज़ें इस 3 स्टेटमेंट मॉडल में कंप्लीटली कनेक्टेड करनी पड़ती हैं। लाइक मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस है। अब ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में हम जाएंगे तो ये यहाँ से लिंक हुआ होगा, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो देखिए ये लोन की शीट में C12, अब यहाँ पे ये C12 जो है वो 1 लाख है, तो इस सेल से ये लिंक हुआ हुआ है। तो हमारी जो है पूरा मॉडल जो है वो कनेक्टेड होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अजम्पशंस की बेसिस पे। जो लेआउट एंड प्रेजेंटेशन है वो इंपॉर्टेंट होती है। कुछ ओपनिंग बैलेंस के लिए हम कॉलम छोड़ते हैं। जो येलो हाईलाइटेड है ये भी कोई भी कलर आप कर दें तो बेस्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्रैक्टिस ये कहती है कि जो इनपुट सेल्स हैं वो उसको आप कोई कलर दे दें ताकि वो आपको हमें पता चल सके कि ये जो है इनपुट सेल्स हैं। अब यहाँ पे आप सेल्स यूनिट्स यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं। 2019 का कैसे आपने निकाला है कि आपने 2000 को मल्टीप्लाई किया है 1 + 5% से। तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपकी जो है वो ग्रुप 5% से इंक्रीज हो रही है आपकी सेल्स। इसी तरह परचेज प्राइस US डॉलर में है, आपने एक्सचेंज रेट लिया, उसकी परचेज प्राइस इन PKR निकाला, फिर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल्स प्राइस निकाली आपने। फिर पेरोल के हेड काउंट्स जो भी आपके हैं उसको आपने जो है एक जगह कर लिया कि आपके नंबर ऑफ हेड काउंट्स कितने रहेंगे 2018 से 2022 तक, क्योंकि हमने प्रोजेक्शंस करनी है, फोरकास्टिंग करनी है, तो हमें हेड काउंट्स भी पता होना ताकि सैलरीज एक्सपेंस को हम इनकम स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो मेजर एक्सपेंस होता है। अब हमने क्या किया, हमने उनकी सैलरीज जो हेड काउंट जो उनकी एनुअल सैलरीज यहाँ लिख ली हैं। अब आप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, उसकी बेसिस पे आप जाहिर सी बात है उन नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीमेंट भी मिलेगा इनको, बिल्कुल 10% या 12% का जो भी आपकी कंपनी की पॉलिसी, आप उनको इंक्रीमेंट भी देंगे। तो ये आपने रखा है। इसकी ये येलो हाईलाइटेड में इनपुट सेल्स में आ गया, इंक्रीमेंट आपने डाल दिए जितना भी आप 10 डालना चाहें 10 डाल दें, 12 डालना चाहें 12। और यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने इसको आपस में ग्रो करवाया 12% से। तो ये आपकी जो है वो लाइक अगर मैं 10% करता हूँ तो ये 1,50,000 का 10% जो है वो 15,000 होता है, तो ये ग्रो हो गया 165 हो गई। अब इसकी सैलरी ये हो गई है सही। फिर अगर हम हेड काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सैलरी एक्सपेंस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपकी जो 2018 में अगर आपका प्लान है कि हम जो है प्लांट एंड मशीनरी परचेज करेंगे, फर्नीचर एंड फिक्सचर लेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल्स, तो आपका ये आउटफ्लो हो रहा है, तो एक्चुअली ये कैश आउटफ्लो है।
फिर इसकी बेसिस पे आपको फिक्स एसेट शेड्यूल भी बनाना पड़ेगा सही है। पूरे 5 साल का, जिसमें आपकी कॉस्ट भी आएगी, डेप्रिसिएशन Depreciation। एक्सपेंस, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हम्म। ये और ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है। तो इसके ज़रिए से हम छोटा सा एक फिक्स एसेट का शेड्यूल बनाएंगे। वो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का ये बना हुआ है, इसमें ये कॉस्ट आ गई है, फिर डेप्रिसिएशन आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, रिटन डाउन वैल्यू आ गई, सही। और ये 5 साल बाद जाके ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। सही। तो इसको फिर हमने इनकम स्टेटमेंट से लिंक करना होता है। अब ये डेप्रिसिएशन यहाँ पे टोटल कितनी आ रही है, चारों एसेट्स की ओवर ये एक्सपेंस की वैल्यू आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल से इसको लिंक करा देंगे। यहाँ पे देखें C6 जो है, अब C6 जो है यहाँ से हमने इसको लिंक कराया हुआ है। इसका मतलब फाइनेंशियल मॉडल जब हम बनाते हैं तो इसमें जो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि हमें लिंकिंग आनी चाहिए, हमें एडवांस एक्सेल के जो फार्मूलाज हैं वो उनकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको लिंकिंग आनी चाहिए बिटवीन डिफरेंट वर्कशीट्स, डिफरेंट वर्कबुक्स, और कोशिश ये करें कि हर चीज़ जो है, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करना चाहिए। लाइक ओपनिंग बैलेंस का कॉलम छोड़ दिया आपने, कुछ इनपुट सेल को येलो हाईलाइटेड कर दिया, और जो है लेआउट एंड प्रेजेंटेशन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लिंकिंग बिटवीन शीट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आपके कुछ इफ्स के फंक्शन भी आपको आने चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमारे पास जो है कुछ जो है वो ये अजम्पशंस जो हम ले रहे हैं, ये इनपुट सेल्स जो हमारी इनपुट्स के नाम से एक शीट है, तो इसमें कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो फिक्स एक्सपेंस होते हैं, लाइक रेंट है, ठीक है। अब आप कुछ होते हैं वेरिएबल्स, तो आपने क्या किया, अब आपने इसकी प्रोजेक्टेड रिजल्ट निकालने, तो अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इनपुट सेल 2018 की डिसाइड करने के बाद 19 का आप किस तरह करेंगे, उसमें इन्फ्लेशन लगाएंगे। इन्फ्लेशन, अब उसके लिए आपको इफ का फंक्शन यूज करना आना चाहिए कि अगर आपका एक्सपेंस जो है वो फिक्स नेचर का है, तो इसका मतलब वो नेक्स्ट 2019 में भी सेम अमाउंट रहेगी। मगर आपका एक्सपेंस अगर वेरिएबल नेचर का है, तो फिर वो इन्फ्लेशन का पार्ट उस पर लगेगा, देन वो जो है वो यहाँ एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह इफ का फंक्शन यूज किया हुआ है। इसमें यही है कि अगर ये इफ फिक्स हो यहाँ पर, तो ये सेम अमाउंट आ जाए, जैसे यहाँ आ रही है, यहाँ भी 2 लाख आ रहा है, यहाँ भी 2 लाख आ रहा है। और अगर ये वेरिएबल हो तो ये इन्फ्लेशन जो है आपकी, इन्फ्लेशन फैक्टर जो है 12% आप अप्लाई हो जाए। सही। तो ये आपके ये फिर आप इनकम स्टेटमेंट से इसको लिंक करा देंगे। इनकम स्टेटमेंट जो है वो इन सेल से लिंक हो जाएगी। जो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाले, यहाँ पे आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाले, तो ये लिंक होगी। ठीक है। ये हम जो है एक्सेल टेबल टॉक्स कर रहे हैं और आज हम साथ के साथ मौजूद हैं, तो साथ से हम कुछ सवालात करेंगे। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया साथ इस एक्सेल टेबल टॉक्स के लिए। कुछ सवालात मैं आपसे करूँगा ड्यूरिंग दिस इंटरव्यू। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक नया यूज़र जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना चाहता है, तो वो कहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखना स्टार्ट करे, कैसे स्टार्ट करे? अगर वो एक्सेल यूज़ करना चाहता है और स्टूडेंट लेवल पे है, तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे पहले जो है वो एक्सपर्ट ट्रेनर से जो है वो बेसिक और एडवांस एक्सेल के कोर्स करें, और साथ साथ अपना जो है एक्सेल की कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए, तो उसके लिए बेहतर ये है कि कोई एक एक्सेल मेंटोर सेलेक्ट करे जो एक्सपर्ट और सर्टिफाइड ट्रेनर हो। जैसे लाइक आप हैं रहीम जुल्फ़िकार अली जो हैं एक्सेल बेसमेंट की, लाइक मैं भी जो है ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करता हूँ, मगर मेरा भी एक मेंटोर है। और इस तरह आप जो है साथ साथ मेंटोर के साथ जो है अटैच हैं, उनके साथ सीखें, प्लस जो है प्रॉपर कोर्सेज करें। लाइक IB भी कोर्सेज कराता है और डिफरेंट जो है लेवल की कोर्सेज हो रहे होते हैं, और हमारे भी प्लेटफॉर्म पे कोर्सेज होते हैं जिसमें आप प्रोफेशनली आप पहले उसको सर्टिफिकेशन लें उसकी, देन उसके बाद जो है वो किसी मेंटोर के साथ अटैच होके और जो है वो अपनी कंटिन्यूस डेवलपमेंट ट्रेनिंग के हवाले से, लर्निंग के हवाले से करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है कि आपका स्पेशलाइजेशन एरिया क्या है रिगार्डिंग एक्सेल? ठीक है, और आपने अब तक जो कंट्रीब्यूशन दिया है एक्सेल से रिलेटेड, वो किन किन सेक्टर्स के अंदर है और किस तरह का कंट्रीब्यूशन आपने एक्सेल कम्युनिटी यूज़र्स के लिए दिया है? देखिए, एक्सेल कम्युनिटी यूज़र्स के लिए मैंने सबसे पहले यूट्यूब चैनल अपना बनाया था, और ज़्यादातर मेरी स्पेशलाइजेशन जो है फाइनेंशियल मॉडलिंग के हवाले से, एडवांस एक्सेल के हवाले से। तो इसमें मैंने डिफरेंट जो है वो कोर्सेज भी किए थे, IBA से भी कोर्सेज किए थे, सर्टिफिकेशन ली थी, और पावर BI के भी कोर्सेज किए थे। इसमें फिर मैंने क्रिएशन सोल्यूशन के नाम से, अपने प्लेटफॉर्म के नाम से जो है एक यूट्यूब का चैनल बनाया, जिसमें मैंने डिफरेंट वीडियोस जो है अपलोड किए हैं, रिकॉर्डेड वीडियो। उसमें ये है कि मैंने व्हाट इफ एनालिसिस के बारे में, लाइक गोल सीक है, सॉल्वर है, डेटा टेबल्स हैं, अपना सिनेरियो मैनेजर है, ये जो व्हाट इफ एनालिसिस टूल है उसके बारे में मेरी सबसे पहली वीडियोज़ थी जो लोगों
लोगों ने काफ़ी लाइक भी की और उसको फिर चैनल्स को सब्सक्राइब भी किया। तो उसमें ज़्यादातर जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग को यूज़ करते हुए व्हाट इफ एनालिसिस कैसे लगाएंगे वो मैंने उस पर रिकॉर्डेड वीडियोज़ डाली थी। और इसी तरह जो मैं भी अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा होता हूँ या कहीं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी करवा रहा होता हूँ, तो उसमें फिर मैं क्या करता हूँ कि उनको ट्रेनिंग देने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस की एक वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। लाइक मैंने गोल सीक आज सिखाया, तो मैं क्या करता हूँ एक गोल सीक की वीडियो जो है मेरे पास मौजूद होती है, तो उसका मैं इनको लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो उससे ये होता है कि उनका एक रेफरेंस बन जाता है। लाइक अगर वो किसी भी वेबसाइट पे यूट्यूब की सर्च करेंगे तो उनको वीडियो तो मिल जाएगी, मगर जो उन्होंने पढ़ा है उसके बारे में एग्जैक्ट वही वीडियो और वही एग्जाम्पल के साथ तो उनका एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो जाता है। तो फ्यूचर में अगर इनको इन केस वो रिक्वायरमेंट होती है कि मैंने व्हाट इफ इन एनालिसिस लगाना है और उसमें गोल सीक कैसे यूज़ करना है, तो उनके लिए जो है एक रेफरेंस पॉइंट मौजूद होता है। इसी तरह कोई डैशबोर्ड की जो है आपको वीडियोस मिल जाएंगी। फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो अजम्पशंस ली जाती हैं, इनपुट्स जैसे हम कहते हैं, तो उसकी एक मैंने छोटी छोटी वीडियोस बना के अपलोड की हुई है अपने चैनल पे। पाइवेट टेबल के जो है वो वीडियो बना के अपलोड की हुई है, जिसमें मैंने पाइवेट टेबल के थ्रू इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है वो वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, जिसमें स्लाइसर्स कैसे डालते हैं, टाइमलाइन कैसे डालते हैं, चार्ट्स कैसे बनाते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं। उससे क्या होता है, एक तो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो जाता है वो, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए भी जो लाइक अजम्पशन लेनी है, अब अजम्पशन स्टार्ट क्या करें, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन कैसी हो, इनपुट सेल्स क्या हों हमारे, और जो ओपनिंग बैलेंस हमने किस तरह छोड़ना है। तो ये कुछ जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की, उसके हवाले से कुछ ना छोटी छोटी मैंने अपना जो है वो इसमें इनपुट दिया हुआ। सर, तो एक चीज़ ये कि मतलब अगर जो व्यूअर्स इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली वो आपसे एडवांस एक्सेल और फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड कांटेक्ट कर सकते हैं। जी, कॉन्टैक्ट। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि स्टूडेंट हो या कोई प्रोफेशनल हो, जब वो आपसे अगर ट्रेनिंग लेता है या किसी भी प्लेटफॉर्म से एक एक्सेल की ट्रेनिंग लेता है, एक्सटेंसिव कोर्स करता है और अपना टाइम, एफर्ट और मनी इन्वेस्ट करने के बाद जब वो इंडस्ट्री में उसको शो करता है, तो मॉनेटरी रिटर्न उसको कैसे मिल सकता है, उसके ऊपर अगर आप ज़रा बात कर सकें कि वो कैसे अपने एम्प्लॉयर से मॉनेटरी रिटर्न ले सके। लाइक अगर वो स्टूडेंट लाइफ से अब प्रैक्टिकल लाइफ में आ गया है और एक्सेल उसने सीख लिया है, तो उसमें मिसाल के तौर पे अकाउंट्स एंड फाइनेंस का वो स्टूडेंट रहा है और जो है वो अब उसको अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब मिली है, तो अकाउंट्स एंड फाइनेंस की जो डिपार्टमेंट की जॉब की नेचर ये है कि ज़्यादातर रिपोर्टिंग्स वगैरह होती हैं, रिकन्सिलेशन वगैरह होती है। तो लाइक आप मिसाल के तौर पे एक छोटा सा काम है बैंक रिकन्सिलेशन करना। आप बैंक रिकन्सिलेशन कुछ इस तरह करते हैं कि चेक नंबर को सर्च करते हैं, उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो है ये क्लियर हो गया चेक। और अगर आपको वी लुकअप आता है तो वी लुकअप जो है यूनिक वैल्यूज़ पे लगता है, चेक नंबर यूनिक होते हैं, उसकी बेसिस पे आप जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैंक लेजर और जो है जो आपका बैंक स्टेटमेंट है, उसको अगर आप एक्सेल पे रख लें तो आप वी लुकअप के जरिए उसको रिकनसाइल कर सकते हैं। इसी तरह आप डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की जो एजिंग रिपोर्ट होती है उसमें उसको आप डायनेमिक किस तरह बना सकते हैं, अगर आप इफ और एंड के फंक्शन लगा दें। इफ एंड फंक्शन क्या करता है कि दो लॉजिकल टेस्ट को देखता है और उसकी बेसिस पे एक ट्रू और फॉल्स की कंडीशन आप दे देते हैं उसको, तो वो रिजल्ट ला के दे देता है। तो वहाँ डेटर्स और क्रेडिटर्स की जो एजिंग रिपोर्ट है वो आप बना सकते हैं डायनेमिकली। अब उसमें क्या होगा कि आप टू डेट से लिंक करा दें, ताकि आप वो जो एजिंग रिपोर्ट हम नेक्स्ट डे आप अपना सिस्टम खोलेंगे तो वो नेक्स्ट डे उस हिसाब से रिकैलकुलेट हुई हुई आपको एजिंग रिपोर्ट मिल जाएगी। तो उसमें आपको ये बेनिफिशियल है कि आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा जो सेव होता है। बार बार रिपोर्ट बनाते हैं, बार बार डैशबोर्ड बनाते हैं, हर महीने डैशबोर्ड बनाते हैं, तो ये गलत है। इसमें ये है कि आप एक दफ़ा डेटा टेबल्स बना लें। डेटा टेबल्स के ज़रिए होता ये है कि आप जब अगस्त का आपने डेटा आपने उसमें डाल दिया और डैशबोर्ड बना लिया, पाइवेट टेबल बना लिया, अब आप सितंबर का जो है वो डेटा इनपुट करेंगे उसके अंदर टेबल्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो पाइवेट टेबल और डैशबोर्ड जो है वो रिकैलकुलेट हो जाएंगे। जस्ट आपको रिफ्रेश करना होगा राइट क्लिक करके, तो उससे होगा ये कि पाइवेट टेबल भी और जो आपने चार्ट्स वगैरह बनाए वो रिफ्रेश हो जाएंगे और डेटा उसमें इनपुट हो जाएगा। तो अच्छा, वो मैं इसी दौरान मतलब यही कहूँगा कि अगर लेट्स सपोज ये सारी चीज़ें जो टेक्निक्स आप हमें बता रहे हैं इस वीडियो में, अगर एक एम्प्लॉय इसको अप्लाई करता है और मैंने देखा है प्रैक्टिकली काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग सेशन लेने के बाद, सीखने के बाद उसको अप्लाई करते हैं, काम को आसान कर देते हैं, ऑटोमेट कर देता है। लेकिन वही बात है कि इसको ऑर्गेनाइजेशन कैसे अप्रिशिएट करे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। तो आप एज अ ट्रेनर हमें ये बताएं कि आप अगर एक पार्टिसिपेंट को, एक प्रोफेशनल को फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मॉडलिंग की ट्रेनिंग देते हैं,
वो अपनी वर्क प्लेस पे जाता है और एक फाइनेंशियल मॉडल ऑर्गेनाइजेशन को बना कर देता है। तो अब वो कैसे इनकैश करवाए इस स्किल सेट को, या वो ऑर्गेनाइजेशन से कैसे इनपुट ले। फॉर एग्जांपल कि अगर वो आपको 10,000 रुपीज़ दे रहा है फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मॉडलिंग के, लेकिन जब वो वर्क प्लेस पे जाता है वो बहुत सारे अच्छे फाइनेंशियल मॉडल्स बनाता है, लेकिन उसको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा। तो मेरा सवाल स्पेसिफिकली ये होगा कि अब वो रिटर्न उसके एम्प्लॉयर से कैसे लिया जा सके, क्योंकि जब उसको रिटर्न मिलेगा तो वो आपके पास दोबारा आएगा और एक नया कोर्स के अंदर वो इनरोल हो जाएगा। तो एक्चुअली ये है कि देखें, अगर वो इसका मॉनेटरी बेनिफिट देखना चाहता है तो पहली बात ये है, अगर जब अपनी कंपनी के फाइनेंशियल मॉडल को बनाएगा तो उसको उसकी भी लॉजिक स्ट्रांग होगी और वो जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा फाइनेंशियल मॉडलिंग में, उसकी ग्रिप ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा उसको। और जिस इंडस्ट्री में भी है वो इंडस्ट्री में जो अगर प्रोजेक्शंस करता है तो उसको बेनिफिट तो है, ठीक है ना, वो उससे लर्निंग करेगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री का फाइनेंशियल मॉडल जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना, हर इंडस्ट्री की नीड डिफरेंट है। और प्लस ये कि आप खुद भी पॉलिश हो रहे हैं। अब इससे आप एम्प्लॉयर से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं कि लाइक आप जो है एम्प्लॉयर को ये बता सकते हैं कि देखें अगर ये चीज़ जो मेरे करने से मुझे जो है आपकी कंपनी को क्या बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। आप उसको ये यकीन दिलाएं कि आप इस कंपनी को क्या बेनिफिट है, लाइक मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव कर रहा हूँ और हमारी बजटिंग अच्छी हो रही है, हमारी जो है वेरियंस एनालिसिस जो है वो अच्छा हो रहा है, लाइक हमें डैशबोर्ड से आपको प्रॉपर रिपोर्ट मिल जाती है। डैशबोर्ड्स अगर बना रहे हैं आप या फाइनेंशियल मॉडल्स बना रहे हैं तो उसमें आप लाइक आप देखना चाहते हैं, आपने 5 साल की प्रोजेक्शन की हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि 2018 में अभी एक्सचेंज रेट लाइक 123 है, तो अगर ये 125 हो जाता है, 126 हो जाता है तो मेरी नेट इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आपका प्रोजेक्शन मॉडल पूरा 3 स्टेटमेंट मॉडल जैसे हम बोलते हैं वो कंप्लीट है हर एंगल से और कनेक्टेड है, तो आप एक्सचेंज रेट को आप इंक्रीज करके देख सकते हैं। तो आप उसको ये यकीन दिलाएंगे हम ये मॉडल जो बनाया है तो ये कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ये हमारा टाइम सेव करेगा, प्लस हम मुख्तलिफ एंगल से अपनी रिपोर्ट्स को व्यू कर सकते हैं, अपनी जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को व्यू कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि हमारी नेट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, हमारी बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारा कैश फ्लो पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रेशियो एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप मजीद और आगे लेके जाएं तो व्हाट इफ एनालिसिस लगा के आप चेक कर सकते हैं, लाइक गोल सी है, अब मैं कितने नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड आउट करूं कि मेरी नेट प्रॉफिटेबिलिटी 4 मिलियन की हो जाए, ठीक है। तो वहां पर आप गोल सीक का ऑप्शन अपने फाइनेंशियल मॉडल पर लगा के ये देख सकते हैं। ये इसी तरह सिनेरियो मैनेजर है, अब आपने मॉडल पूरा बनाया हुआ है, आप सिनेरियो मैनेजर के थ्रू ये देख सकते हैं कि यार अगर इस साल मेरी बेस्ट परफॉर्मेंस रहती है, हम जो है वो नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा सोल्ड करते हैं, तो बेस्ट सिनेरियो में क्या हमारी नेट प्रॉफिटेबिलिटी होगी, या वर्स्ट सिनेरियो में क्या होगी, या रियलिस्टिक सिनेरियो में क्या होगी। तो जब आप प्रैक्टिकली उसको एग्जांपल देके और इस तरह समझा रहे होंगे और प्लस जो आप मीटिंग में अपना प्रेजेंट कर रहे होंगे ये, तो वो हाईली इफेक्टिव होगा और प्लस जो है वो डायनेमिक होगा। और तो इसमें दोनों का फ़ायदा है, एक एम्प्लॉई का भी फ़ायदा और एम्प्लॉयर का भी फ़ायदा है। और फिर वो आप उसको ये यकीन दिलाएंगे इससे बेनिफिशियल दोनों का है, और प्लस फिर इनको इनकरेज करेंगे इस तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो एम्प्लॉई को प्रोवाइड अपनी कंपनी के एक्सपेंस पे करने दें, ताकि इससे क्या होगा कि एम्प्लॉई ट्रेनिंग लेगा तो इन दी एंड कंपनी का भी फ़ायदा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि आप फाइनेंशियल मॉडल्स पे काफ़ी एक्सटेंसिव माशाल्लाह से काम कर चुके हैं, अगर देखा जाए तो हम फाइनेंशियल मॉडल बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट से बनाते हैं एक्सेल के अंदर और सारे लॉजिक्स को इंटरकनेक्ट करते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आपका कोई लाइव सपोर्ट का ऑप्शन इनेबल कर दे और नेट से हम इंटरनेट से कनेक्टेड हों, हमारी जो वर्किंग फाइल्स हैं उसमें एक लाइव ऑप्शन मौजूद हो, लाइव सपोर्ट, उसमें अगर कोई किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई चाहता है कि मुझे हेल्प आउट हो जाए तो वहाँ पे वो एक्सेल ओपन करे और देन लाइव सपोर्ट में जाए, तो वहाँ उसको जो है ऑनलाइन जो है वो सपोर्ट मिल रही हो। वो ये इसमें ये है कि वो फ़ौरन ऑन द स्पॉट वो जो है इसके बारे में जो है वो जान सकेगा। जैसे हेल्प का ऑप्शन है, अब हेल्प के ऑप्शन में थ्योरी है, तो इसमें हम ये है कि इसमें एक वीडियो जो है जैसे लाइव सपोर्ट में कोई वीडियो डाल दें जिस टॉपिक के बारे में वो चाह रहा है कि मैं ये सीखना चाह रहा हूँ, तो उसमें आप वीडियो डाल सकते हैं। मैं ये अगर माइक्रोसॉफ्ट इसमें अगर नेक्स्ट वर्जन में अगर लाइव सपोर्ट का ऑप्शन डाले तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ यूज़र एंड मे बी अ ट्रेनर। अगर आप कोई ट्रेनर है वो माइक्रोसॉफ्ट से अटैच होके लाइव सपोर्ट में यूज़र्स की हेल्प करना चाहता है तो वो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे एक और इशू है फॉर एग्जांपल कि जब आप नंबर्स लिखते हैं किसी सेल के अंदर
डिजिट्स में, तो उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करने का कोई भी हमारे पास फंक्शन नहीं मौजूद है बिल्ट इन। हमें VBA के थ्रू करना पड़ता है, या हमें कोई बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स फार्मूला बना के लॉजिक्स क्रिएट करनी पड़ती है। तो ऐसा कोई फंक्शन है नहीं, और काफ़ी सालों से ये फंक्शन ऐड नहीं हुआ। ठीक है, जैसे मैं इस सेल में 1000 लिखूँ और 1000 लिखा हुआ आ जाए इन वर्ड्स, तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड, जैसे आइट्रेटिव कैलकुलेशंस हैं, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, प्रेसिडेंट्स डिपेंडेंट्स के एरर्स आ रहे होते हैं, सर्कुलर रेफरेंसेस आ जाते हैं समटाइम्स मॉडल्स के अंदर। तो उन इश्यूज़ पे अगर आप बात करेंगे, उसको फिर माइक्रोसॉफ्ट कैसे मिनिमाइज कर सकता है अदर देन लाइफ सपोर्ट? देखिए, इसमें ये कि सबसे पहले जो है आप माइक्रोसॉफ्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है वो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करे, जिसमें ऑनलाइन वीडियोस भी मौजूद हो, ऑनलाइन यूज़र सपोर्ट भी हो, सही, जिसमें डिफरेंट जो है वो एक्सपर्ट ट्रेनर्स को जो है वो अपने साथ इनके साथ अगर कोई इनरोल होता है, और उसके बाद यूज़र्स को जहाँ भी कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो वो जो है वो ऑनलाइन सपोर्ट दें इस हवाले से। लाइक आप किसी भी वेबसाइट पे भी जाते हैं तब भी आपको जो है फ़ौरन एक चैट आ जाती है आपके पास। तो इसी तरह हमारा माइक्रोसॉफ्ट में भी एक ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ऑनलाइन चैट का ऑप्शन आ जाए। तो अगर जो जिसको उस वक्त लाइक कोई अगर सर्कुलर रेफरेंस आ रहा है या कोई और प्रॉब्लम आ रहा है कि इनको नंबर्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, अब उसको नहीं पता कि नंबर्स को वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उस पर एक VBA की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए हम उसको कर सकते हैं। तो वो एक या तो हमारे पास ऑलरेडी उनके पास बने हुए हों, तो वो उसको चैट पे जो है वो मैसेज कर दें कि आप ये जो है ऑल्टर F11 करके इंसर्ट मॉड्यूल में जाके ये मैक्रोस जो है वहाँ पेश कर दें। देन उसके बाद आप वर्कशीट पे आएंगे, तो आप जब आप नंबर्स में लिखेंगे तो वो रुपीज़ में आपको या डॉलर में आपको वो बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने भी डेफिनेटली कहीं से स्टार्ट किया होगा, तो आपका बेसिकली लर्निंग पाथ क्या था एक्सेल सीखने का, और आपको कैसे पता चला कि मेरी जो स्ट्रेंथ्स है वो बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग है और मुझे इस साइड पे जाना चाहिए? तो आपका पाथ मैंने जो स्टार्ट किया था वो 2012 में एक जॉब स्टार्ट की थी, जिसमें 2012 में एक जॉब स्टार्ट की थी। 2012 to 16 वो प्रोजेक्ट रहा था USAID एंड UK8 का। सही। तो उस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था जिसमें माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स भी था, सन 6 भी था। तो इसमें हमारी एक्सेल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा थी उसमें रिपोर्टिंग के हवाले से, क्योंकि हमारे पास जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आपको पता है कॉस्ट सेंटर्स भी डिफरेंट होते हैं, एक्टिविटी बजट लाइन सब डिफरेंट होता है। तो एक्सपेंडिचर की रिकॉर्डिंग के हवाले से और उसकी रिपोर्टिंग के हवाले से हमें प्रॉब्लम्स थे। कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती थी जिसकी कैश की डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो कैश को मैनेज करना और एडवांस वगैरह के इशूज़ जो थे, तो एक्सेल की रिक्वायरमेंट वहाँ से मेरी स्टार्ट हुई। तो एक्सेल जब मैंने स्टार्ट किया तो फिर हमारी जो कंपनी थी, जिस कंपनी में मैं जॉब करता था, वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज कराए जाते थे उसके एम्प्लॉइज़ के लिए। उसमें लाइक कम्युनिकेशन के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, एक्सेल की भी मैंने कुछ वहाँ से कोर्सेज जो है वर्कशॉप्स वगैरह और ट्रेनिंग्स वगैरह सर्टिफिकेशन वगैरह डिफरेंट जगह से ली, तो कंपनी के एक्सपेंस पे। वहाँ से जो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, उसमें मैंने बेसिक एक्सेल की प्रॉपर तरीके से सर्टिफिकेशन ली और IB में मैंने पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने एडवांस एक्सेल सीखा। एडवांस एक्सेल की रिक्वायरमेंट जो है वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में फाइनेंस एंड अकाउंट्स से स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें फिर मैंने एडवांस एक्सेल सीखता गया। इसके बाद मैंने डिफरेंट वीडियोस को जो है वो सर्च किया कि अगर मुझे डैशबोर्ड बनाना है तो मैं डैशबोर्ड रिपोर्टिंग के हवाले से, आप जानते होंगे chandu.org के नाम से, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं डैशबोर्ड के हवाले से। ठीक है, इस तरह डिफरेंट ट्रेनर से फिर मैंने फाइनेंशियल मॉडलिंग के हवाले से पढ़ा और जो है कोर्सेज वगैरह किए। मतलब मैंने पहले बेसिक एक्सेल किया, उसका पूरा एक सर्टिफिकेशन ली, फिर मैंने एडवांस एक्सेल किया, देन फिर मैंने बिजनेस रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल मॉडलिंग के हवाले से अप्रोच। फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक एक्सेल भी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एडवांस एक्सेल भी आपको आना चाहिए, और रिपोर्टिंग के हवाले से और डैशबोर्ड रिपोर्टिंग भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देन आप फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए कुछ आपके पास स्किल्स होना ज़रूरी है, लाइक अकाउंटिंग स्किल होना ज़रूरी है, न्यूमेरिक स्किल होना ज़रूरी है, स्प्रेडशीट की स्किल होना ज़रूरी है आपके पास, इंडस्ट्री की नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। इस तरह ये सारी चीज़ें होने के बाद ये स्किल्स अगर आपके पास हैं, तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का अगर आप प्रॉपर तरीके से कोर्स करते हैं तो उसमें आप डिफरेंट मॉडल्स बनाना सीखेंगे, लाइक सेंसिटिविटी एनालिसिस मॉडल है, थ्री स्टेटमेंट मॉडल है, मर्जर एंड एक्विजिशन मॉडल है, ये डिफरेंट मॉडल्स आप बनाएंगे। तो उसमें आपका जो है वो आपकी जो नॉलेज, आपके पास जो स्किल्स है वो वहाँ पर यूटिलाइज हो रही होती है। तो आपके लिए ज़रूर आपको ये पता होना चाहिए कि यार अर्निंग पर शेयर कैसे निकालना है, ठीक है ना।
तो कैश फ्लो कैसे बनेगा, ये सारी चीज़ें, ये नॉलेज आपके पास है, अगर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड है तो उसके ज़रिए से आप फाइनेंशियल मॉडल बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो ये मेरा पाथवे था कि अगर मैंने बेसिक एक्सेल की सर्टिफिकेशन, एडवांस एक्सेल, बिजनेस रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग, उसके बाद देन मैंने लास्ट में अभी रिसेंटली पावर BI का IBS से कोर्स किया। ज़बरदस्त, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक फिजिकल ट्रेनर भी चाहिए और आप कोर्स के अंदर एनरोल भी करें, साथ साथ आप अपना बैकअप या सपोर्ट सिस्टम ऑनलाइन भी रख सकते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि जैसे वीडियोज़ हम देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह से। बिल्कुल, आप वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं, मगर इसके लिए जो है वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस में पहले आपको फर्स्ट टाइम रिकमेंड नहीं करूँगा, सेकंड टाइम इस तरह कि आपने एक दफ़ा कोर्स कर लिया, लाइक आपने जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स कर लिया है, सही। अब आप चाहते हैं कि कुछ उसमें एडिशनल कोई फीचर आप सीखना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं। लाइक आपने एडवांस एक्सेल का कोर्स कर लिया है, अब आप चाहते हैं कि मैं जो है कोई एक टूल है, लाइक एक टूल है सिनेरियो मैनेजर फॉर एग्जांपल के तौर पे, उसमें आप वो सीखना चाहते हैं, तो देन आप सर्च कर सकते हैं। मगर अगर आप वैसे यूट्यूब की वीडियो से बहुत डिस्ट्रैक्शन, वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि आप एक पाथवे से नहीं जा रहे। एग्जैक्टली, ठीक है, आप जो है वो डायरेक्टली वीडियोस पे जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। पहले आप जो है उस चीज़ को सीखें, ठीक है ना। अब ये सम कैसे लगता है, VLOOKUP कैसे लगता है, सम इफ कैसे लगता है, ये इफ्स के फंक्शन कैसे लगते हैं, तो इफ्स में अगर आपने और मॉडिफाई और जो है इसको आगे बढ़ना है, इफ्स को मजीद सीखना है, जैसे आपने सिंपल इफ सीख लिया, अब आपको मल्टीपल इफ्स लगाने हैं, इफ्स का फंक्शन यूज करना है, तो वो कैसे करना है, उसके बारे में आप वीडियोस देख सकते हैं। मगर आपको इफ का जो है लॉजिक क्लियर होनी चाहिए कि आपका एक लॉजिकल टेस्ट होता है और एक ट्रू और फॉल्स की कंडीशन होती है। इसी तरह इफ और एंड सीख लिया आपने, इसमें 2 लॉजिकल टेस्ट हैं और एक ट्रू और फॉल्स की कंडीशन है। तो इसमें आप मजीद मिसाल के तौर पे आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि यहाँ पर मल्टीपल इफ्स के फंक्शन यूज होंगे, ठीक है ना। आप एनुअल टैक्सेबल इनकम को और टैक्स रेट से फिर जो है वो सेल्स के रेफरेंसेस वगैरह देंगे, तो वहाँ मल्टीपल इफ्स लगेंगे। तो अगर आपको इफ आता है और इफ्स में आपने थोड़ा काम, तो फिर इनकम टैक्स की जो है आप सर्च कर सकते हैं कि मैं मल्टीपल इफ्स कैसे सीखूं, तो आप वहाँ यूट्यूब देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली बोलेंगे कि मैं जो है एक इनकम टैक्स कैलकुलेटर बनाना है और मल्टीपल इफ सीखना है, तो वो प्रॉब्लम होगा। पहले आपको इफ सीखना पड़ेगा, फिर इफ सीखना पड़ेगा, देन इफ एंड सीखना पड़ेगा, इस तरह करके आपका एक चलेगा। अच्छा, मेरा ये एक और क्वेश्चन है आपसे कि आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स को फाइनेंशियल मॉडलिंग, एडवांस एक्सेल पढ़ाया है, तो स्पेसिफिक फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड इंडस्ट्री में किस तरह के इश्यूज होते हैं, या पार्टिसिपेंट्स आपसे कैसे सवाल पूछते हैं, या कॉमन इश्यूज क्या है फाइनेंशियल मॉडलिंग के, और आप किस तरह के सोल्यूशंस उनको प्रोवाइड? रिसेंटली अभी मैंने कुछ ट्रेनिंग्स करवाई हैं और कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जैसे एक लम्स का स्टूडेंट था, तो उसके पास एक पूरी जो है वो एक नॉलेज का बैकग्राउंड था पहले, तो देन वो उससे ये पूछ रहा था कि आप एंग्लो का एक मॉडल मैं बनाना चाहता हूँ, तो आप मेरी किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं। तो अब डेफिनेटली आपके पास 5 रिकॉर्ड्स उनके होने चाहिए, लाइक आप किसी भी कंपनी का बना रहे हैं, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड हो आपके पास, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, देन उसकी बेसिस पे आप अगले 5 साल की प्रोजेक्शन करनी है। तो सबसे पहले आप जो है उसकी सेल्स ग्रोथ से स्टार्ट करेंगे, एजम्पशन लेंगे, इनपुट्स वगैरह लेंगे, ट्रेंड लाइन, आपका ट्रेंड लाइन का जो एक फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हुए ट्रेंड लाइन के जरिए ट्रेंड बनाएंगे कि इनका ट्रेंड है क्या, कि इनकी सेल्स ग्रोथ कैसे जा रही है, कि एक्सपेंसेस का क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह का और एक्सपेंसेस वगैरह का क्या ट्रेंड लाइन है। देन आप जो है रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूले रखें, फिर उसको कनेक्टेड करके फाइनेंशियल मॉडल बन। अब वो एक्चुअली इनकी नीड ये थी कि हमें जो है ये टास्क दिया गया है कि हमने जो है वो डिफरेंट मॉडल बनाने हैं अपने, मगर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल ये आप किसी कंपनी का उन्होंने मॉडल बनाना था, तो उसमें कंपनी के रिकॉर्ड्स रखते हुए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की बेसिस पे फोरकास्टेड रिजल्ट्स हमने बनाने थे। तो ये मैंने उनको हेल्प आउट किया है, उन्होंने पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स किया मुझसे, यहाँ से लंच के स्टूडेंट थे उन्होंने उससे, और इसके अलावा और भी मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो कि उनकी नीड ये थी कि हमें जो है वो अपनी कंपनी की जो है फोरकास्टिंग करनी है, ठीक है, बजट बनाने हैं और कैश फ्लो मेंटेन करना है, तो ये किस तरह होगा। और फिर उनको जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंने सोल्यूशन दिए। अब कुछ की ऐसी भी नीड थी, वो ये चाहते थे कि हमारी जो है वो हम ये देख सकें कि अगर हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे अगर हमारी फिक्स कॉस्ट ये है और वेरिएबल कॉस्ट ये है और हमारे रेवेन्यूज ये हैं, ठीक है, पूरे साल के, उसकी बेसिस पे इस सिनेरियो की बेसिस, मतलब सिनेरियो एनालिसिस और सेंसिटिविटी एनालिसिस में, उसमें ये कि लाइक आप एक कोई भी एक जो है वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपने अगले साल की ये आपने ये देखा कि मेरी पर डे डिमांड कितनी है, एनुअल डिमांड कितनी है, मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या है पर यूनिट,
और जो है इसी तरह फिक्स कॉस्ट क्या है मेरी, तो इसकी बेसिस पे वो चाहते थे कि हम डिफरेंट एंगल से जो है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देख सकें। लाइक एक मैंने उनको छोटी सी एग्जांपल भी दी थी कॉपी शॉप के हवाले से। लाइक आप एक मशीन जो है वो कॉपी करने के लिए जो एक मशीन का उसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप एक मशीन लीज पे लेते हैं $5,000 की, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। आप रेंट दे रहे हैं, ये भी फिक्स कॉस्ट है। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि पर यूनिट क्या है कि पर कॉपी एक कॉस्ट आती होगी आपको, आप पर कॉपी एक जो है वो रेवेन्यू भी लेते होंगे। तो आप ये अपने इनपुट्स डिसाइड कर लें। तो उनको मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड किया इस तरह कि पहले उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद उनको फिर मैंने बताया कि आपकी इनपुट्स क्या होंगे। पहले सबसे पहले ये क्या फाइनेंशियल मॉडलिंग में आप सबसे पहले क्या करें, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेंगे, एक सिनेरियो है, ये आपको प्रॉब्लम है। देन आप उसके बाद क्या करें कि उसके इनपुट डिसाइड करें कि इस इनपुट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, पर मंथ क्या चीजें हैं और पर ईयर क्या चीजें हैं, जिसमें आपकी फिक्स कॉस्ट भी आ गई, वेरिएबल कॉस्ट भी, रेवेन्यूज और अदर एक्सपेंसेस वगैरह वो भी आ गए। फिर आप उसकी बेसिस पे, उस इनपुट्स की बेसिस पे एक कैलकुलेशन परफॉर्म करें। कैलकुलेशन आपकी ये होगी कि आपका नेट प्रॉफिट क्या बनता है। अगर आपकी सेल्स ये होती है और एक्सपेंसेस, फिक्स कॉस्ट और जो कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करने के बाद ये जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, तो उसको आप डिसाइड करेंगे ये आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी। आपने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, फिर इनपुट्स हो गए, असम्पशंस हो गई, देन उसकी बेसिस पे आपने कैलकुलेशन परफॉर्म की, देन आप उसकी बेसिस पे आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। लाइक अगर मैं एक मशीन लगा जो है वो फिक्स लीज पे लेता हूँ $5,000, तो मेरी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। अगर मैं 2 मशीन लेता हूँ तो मेरी नेट प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और अगर मेरी डिमांड इतनी रहती है तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। तो उस डेटा टेबल्स के जरिए ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। तो मैं उनको डिफरेंट टूल्स भी सिखाता हूँ साथ साथ कि अगर आपने ये इस तरह अगर एक मॉडल कंप्लीट बना लिया, देन उसकी बेसिस पे आप डिफरेंट एनालिसिस मॉडल जो है जो व्हाट-इफ एनालिसिस टूल है उसके जरिए से इसको चेक करें कि लाइक अगर मैं मेरी एनुअल डिमांड जो है वो 5 लाख यूनिट्स होगी, तो और मैं नंबर ऑफ मशीन 1 लगाता हूँ जिसकी फिक्स कॉस्ट $5,000 है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। और अगर मेरी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 0.02 है, तो 0.0 जो है 5 हो जाए, तो फिर मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी। तो डिफरेंट एंगल से हम क्या कर रहे हैं, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर कर रहे हैं।